we are going to start a new topic, delivering a negative message through indirect approach or through indirect strategy. Before this, we have already discussed that using the if you are going to deliver a negative message, after that you will choose that either you are going to deliver a negative message through direct approach or through indirect approach. We have discussed the using the delivering the negative message through indirect approach. Now today we are going to discuss the using the indirect approach for negative message, for delivering a negative message using the indirect approach. The indirect approach actually helps the reader prepare for the bad news by outlining the reason for the situation बिफोर प्रेजेंटिंग द बैड न्यूज़ इटसेल्फ. क्योंकि अगर हमने पीछे जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि उसमें सबसे पहले यू विल स्टार्टेड विद द बफर के बाद जो है यू विल गिव द रीजनिंग और डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर द रीजनिंग you will go for the bad news and then the positive angle, and in the last you will give the respectful closure. So this will be the strategy in indirect approach, and we will discuss all these points one by one. So indirect approach helps the reader prepare for the bad news by outlining the reason. वो इसमें ये होता है कि जो रीडर है, जो रिसीवर है, जिसको आप बैड न्यूज़ डिलीवर करने जा रहे हैं, आप उसका माइंड जो है उसको पहले आप उसको आउटलाइन करते हैं, उसको रीज़न देते हैं, देन यू गिव द बैड न्यूज़ और देन यू डिलीवर द नेगेटिव न्यूज़. इट विल डेफिनेटली हेल्प द रीडर टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड योर मैसेज. सो हाउएवर इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ नॉट, इनडायरेक्ट अप्रोच का कतई ये मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ नॉट मेंट टू obscure द बैड न्यूज़ और टू डिले द बैड न्यूज़ और लिमिट योर responsibility, or doesn't mean that you are going to change the bad news into the positive one. So the purpose of this indirect approach is to ease the blow and help the reader to accept and understand the negative message. So opening with the buffer. सबसे पहले you will start with the buffer. Buffer क्या है कि message using the indirect approach opens with the buffer. You will open your message if you are going to deliver a negative message through indirect approach. You will open this message with a buffer. Buffer का मतलब ये है कि a neutral, non-controversial statement that is closely related to the point of the message, but it does not convey the actual bad news. इसका बफर ये होता है कि एक न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है जो रिलेटेड तो होती है बैड न्यूज़ के साथ, लेकिन एक्चुअलिटी में वो बैड न्यूज़ नहीं होती. इट इज़ रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ द मैसेज बट इट डज़ नॉट कन्वे द बैड न्यूज़ इटसेल्फ. लेकिन वो बैड न्यूज़ इटसेल्फ कन्वे नहीं करती. एक दूसरे सिंपल वर्ड्स में इट प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द नेगेटिव मैसेज. वो एक ग्राउंड प्रिपेयर करती है, आपको मेंटली प्रिपेयर करती है, आपको स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आती है, जहाँ पर जो है उसके बाद आप रीजनिंग देते हैं, रीजनिंग के बाद यू गिव द एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्स, और उसके बाद जो है यू डिलीवर अ बैड न्यूज़, और बाद में जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव उसमें अगर कोई पॉइंट है तो आप उसको डिस्कस करते हैं और द पॉजिटिव एंगल उसका बताते हैं, लास्ट पे जो है रिस्पेक्टिवली उसको रिस्पेक्टिंग क्लोजिंग उसकी करते हैं. सो a buffer gives you an opportunity to start the communication process without jumping immediately into the bad news. बफर जो है वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जो जिसमें जो है आपको यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विदाउट इमीडिएटली टेलिंग द बैड न्यूज़. और जब आप इमीडिएटली जो है वो बैड न्यूज़ जो है वो नहीं किसी को बताते तो इट बिकम्स ईजी फॉर द रीडर टू एक्सेप्ट एंड टू अंडरस्टैंड द बैड न्यूज़. इसी तरह डिपेंडिंग इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट अ गुड बफर कैन एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड, assure the reader of your attention to the request, and it also indicate your understanding of the reader's need. जब आप एक when you will start your negative message with a good buffer, it will not only express that how concerned you are with your reader, तो ये शो करेगा अगर जितना अच्छा you will start with a buffer, जितना अच्छा good buffer होगा before negative news or before delivering a negative news, basically it will give your reader an impression that you pay the attention to the request, and you also indicate your understanding, you give the importance to the reader's need, and you are concerned to the reader's needs. And it also introduce the general subject matter or simply establish a common ground with your reader. So a good buffer also needs to be relevant and sincere. इसलिए जो good buffer है वो relevant होना चाहिए और sincere होना चाहिए. और अभी आपको मैंने बताया है कि buffer होता क्या है. buffer एक जो है वो statement होती है, एक neutral non controversial statement होती है, जिसके बाद जो है वो आप रीज़न देते हैं और रीजनिंग के बाद जो है वो आप एक्चुअल बैड न्यूज़ की तरफ जाते हैं. ये सम हाउ जो है इट इज़ रेलिवेंट टू द
बैड न्यूज़, लेकिन इट डज नॉट कन्वे द बैड न्यूज़ इटसेल्फ। ये उसे रेलिवेंट होती है लेकिन उसको कन्वे नहीं करती। इसलिए गुड बफर जो है वो अप्रिशिएट करता है, उससे पता चलता है आपके रीडर को कि हाउ कनेक्टिंग, हाउ कंसर्नड यू आर विद योर रीडर एंड हाउ मच अटेंशन यू पे टू द रिक्वेस्ट ऑफ योर रीडर एंड हाउ कंसर्नड यू आर विद योर रीडर्स नीड्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट बफर के बाद जो है वी विल गो फॉर रीजंस, प्रोवाइडिंग रीजंस एंड द नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग रीज़न एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब आपने बफर से बैड न्यूज़ को अपनी स्टार्ट किया, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपने एक स्टेटमेंट दी, एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दी और आपने एक ग्राउंड प्रिपेयर की, उसके बाद जो यू गिव द रीज़न के वाई यू आर गोइंग टू डिलीवर दैट बैड न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़। उसके बाद आप रीज़न प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है यू विल गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग रीज़न एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एन इफेक्टिव बफर सर्व्स एज अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर मैसेज। एक इफेक्टिव बफर जो होता है वो बताता है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर मैसेज क्या है, इन विच यू बिल्ड अप द एक्सप्लेनेशन, यू गिव द रीज़न एंड देन यू गिव द रीज़न एंड बिल्ड अप द इंफॉर्मेशन फॉर द नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज दैट विल कल्मिनेट और दैट विल रीच अ क्लाइमेक्स इन योर नेगेटिव न्यूज़। और उससे पहले अपने जो नेगेटिव न्यूज़ को डिलीवर करने से पहले यू गिव द रीज़न, यू गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दैट विल ऑल्सो हेल्प your reader to understand and accept your negative news. So an ideal explanation section leads readers to your conclusion before you come right out and say it. इससे पहले कि आप वो उस नेगेटिव न्यूज़ तक जाएं और उसको डिलीवर करें, उससे पहले जब आप उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं और डिटेल देते हैं, एडिशनल डिटेल देते हैं और रीजनिंग देते हैं, तो ये आपके रीडर को जो है वो उस कंक्लूजन की तरफ जाती है कि यू आर नाउ गोइंग टू टेल समथिंग बैड, नाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर सम नेगेटिव न्यूज़ before you come right out and say it. So by giving reasons effectively, you help maintain focus on the issues at hand and diffuse the emotions, and always accompany significantly bad news. So an effective way to do this is to start with the positive or neutral points and move through progressively negative points. एक इफेक्टिव जो रीजनिंग होती है और एक्सप्लेनेशन होती है उसमें ये होता है कि यू स्टार्ट गिविंग द रीज़न और यू स्टार्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन विद द पॉजिटिव और न्यूट्रल पॉइंट्स, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली जो है यू मूव फॉरवर्ड एंड मूव थ्रू द प्रोग्रेसिवली नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव पॉइंट्स. So provide enough detail for the audience to understand your reason, but be precise and be concise. Avoid इसमें लेकिन एक important चीज़ ये है कि you need to avoid hiding behind company's policies to cushion your bad news. आपने ये नहीं करना कि आपने कंपनी की पॉलिसीज़ के पीछे अपने आप को छुपाना है, उसके पीछे आपने कवर अप नहीं करना, बल्कि अवॉइड करना है हाइडिंग बिहाइंड कंपनीज पॉलिसीज टू कुशन योर बैड न्यूज़. सो वेल रिटन रीजंस और वेल रिटन रीजंस कौन सी होती हैं? वेल रिटन रीजंस आर डिटेल्ड, अनअपोलोजेटिक, टैक्टफुल, एज पॉजिटिव एज पॉसिबल एंड पर्सनलाइज्ड. तो जब आपने रीजन देनी है अपने रीडर को, रीजनिंग बिफोर डिलीवरिंग द एक्चुअल नेगेटिव न्यूज़, व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड अप एक्सप्लेनेशन एंड रीज़न, उससे पहले आप एक वेल रिटन रीज़न जो होती है उसमें ये 5 पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है कि द रीज़न शुड बी डिटेल्ड, इट शुड बी अनअपोलोजेटिक, टैक्टफुल, पॉजिटिव एज पॉसिबल एंड इट शुड बी पर्सनलाइज्ड. जी ये तो था कि जी प्रोवाइडिंग रीज़न एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि नाउ यू विल डिलीवर अ नेगेटिव मैसेज, continue with a clear statement of a bad news. The third thing is that now you are going to deliver the actual bad news. So after you have thoughtfully and logically established the reason and you have give the reason of that bad news or negative message to your readers are now mentally prepared to receive the bad news. You can use 3 techniques to convey that negative news or negative information as clearly, as kindly as possible. तो वो 3 टेक्निक्स जो है वो आपने, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव बिल्ड अप, जब आपने रीज़न दी और एक्सप्लेनेशन दी है तो इट मीन्स दैट कि यू हैव ऑलरेडी बिल्ड अप योर रीडर्स माइंड दैट नाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर अ नेगेटिव न्यूज़ और समथिंग नेगेटिव. सो योर रीडर्स आर ऑलरेडी प्रिपेयर टू रिसीव द बैड न्यूज़. और उसके लिए जो है यू कैन यूज़ 3 टेक्निक्स. नंबर 1, मेक श्योर यू डू नॉट ओवर एम्फसाइज द बैड न्यूज़, कि आपने जो है वो श्योर करना है कि आपने बैड न्यूज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एम्फसाइज नहीं करना, उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना. सेकेंडली, मिनिमाइज द स्पेस और टाइम डिवोटेड टू द बैड न्यूज़. जो बैड न्यूज़ डिलीवर करने के लिए आपने
जो टाइम लिया है उसको मिनिमाइज़ करें, उसको इतना ज़्यादा जो है प्रोलॉन्ग नहीं करना और उसको इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं जाना और इतना ज़्यादा उसको डिले नहीं करना. थर्ड थिंग इज़ दैट सबऑर्डिनेट बैड न्यूज़ विद कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे के कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं. जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. So subordinate bad news with the complex or compound sentences. और उसके बाद जी embed bad news in the middle of the paragraph. कोशिश करें कि bad news को जो है वो middle of the paragraph में जो है वो adjust करें और use parenthetical expressions. और उसके लिए parenthetical expressions use करें. To convey bad news you need to be very careful. So to convey bad news carefully, आपने चंद एक चीज़ों को ज़हन में रखना. नंबर 1, de-emphasize the bad news de-emphasize the bad news visually and grammatically. यानी कि आपने जो bad news है उसको de-emphasize करना है visually भी और grammatically भी. इसका मतलब ये है कि for example, if the primary purpose of the bad news या primary point of your message is that the profits of the company are down, कि अगर आपका जो फोकस है मैसेज का या मेन पॉइंट आपके मैसेज का ये है कि आपकी जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, द प्रॉफिट्स आर डाउन, इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू मार्जिनलाइज द न्यूज़ बाय बर्निंग इट इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. सो स्टेट द नेगेटिव न्यूज़ क्लियरली एंड मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन टू एनी पॉजिटिव न्यूज़ दैट माइट बैलेंस द स्टोरी. इसका मतलब ये है कि फिर आपने उसको इतना ज़्यादा मार्जिनलाइज नहीं करना न्यूज़ को कि आप उसको सेंटेंस के मिडल में बताएं, बल्कि नेगेटिव न्यूज़ को आपने क्लियरली बताना है, मेक इट स्मूथ. और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो उसके साथ आपने अटैच करनी है ताकि जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो बैलेंस हो जाए. दैट माइट बैलेंस द स्टोरी. सेकेंडली ये तो था कि आपने जो है डी एम्फसाइज करना है बैड न्यूज़ को विजुअली एंड ग्रामेटिकली. सेकेंडली यूज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ अप्रोप्रिएट. थर्ड, टेल व्हाट यू कैन डू और व्हाट हैज़ डन. आपने ये बताना है अपने रीडर को व्हाट यू कैन डू और हैव डन रादर देन व्हाट यू कैन नॉट डू. ये नहीं बताना कि आप क्या नहीं कर सकते, बट आपने ये बताना है कि आपकी क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है और आप क्या व्हाट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम व्हिच यू कैन नॉट डू. बजाय इसके कि आप इस पर फोकस करेंगे जो आप नहीं कर सकते, आपने उसको ये बताना है कि व्हाट यू कैन डू और व्हाट हैव डन. द लास्ट थिंग इज़ दैट क्लोजिंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट. अब उसकी क्लोजिंग की तरफ आते हैं. नंबर 1 बफर था, बफर को भी हमने डिस्कस कर लिया, रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस कर लिया. उसके बाद एक्चुअल बैड न्यूज़. और द लास्ट थिंग इज़ दैट क्लोजिंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट. As in a direct approach, the close in the direct approach offers an opportunity to emphasize your respect for your audience. Even you have just delivered unpleasant or negative news. यानी कि डायरेक्ट अप्रोच की तरह इनडायरेक्ट अप्रोच में भी जो है आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने जो है क्लोजर जो है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल वे में करना है, क्योंकि जो है दैट इज़ एंड यू नीड टू फोकस इन योर क्लोजर to emphasize your respect for your audience. Even you have delivered or you have just delivered an unpleasant or negative news. So express best wishes without ending on a falsely unbeat note. ये नहीं कि आपने उनको कोई फॉल्स होप देनी है या कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आप ताकि वो आपका कस्टमर आपसे लगा ले. एक्सप्रेस बेस्ट विशेस विदाउट एंडिंग ऑन फॉल्स नोट और फॉल्स होप्स एंड ऑन अ फॉल्सली अनबीट नोट. Secondly, if you can find a positive angle that's meaningful and that matters to your audience, अगर आपको उसमें कोई positive angle नज़र आता है जो meaningful है आपके audience के लिए, by all means consider adding it to your conclusion. तो उसको आपने अपने conclusion में add करना है. Do not try to pretend that the negative news did not happen or it would not affect the reader. इस किस्म का कोई impression आपने नहीं देना कि ये negative news जो है उसको no need to change the negative news into the positive news. Negative news is a negative news. लेकिन उसको जो है आपने इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना कि नेगेटिव न्यूज़ डिड नॉट हैपन, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हुई और इट वुड नॉट इफेक्ट द रीडर. सो सजेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशंस इफ़ सच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं, यू कैन गिव अल्टरनेटिव सोल्यूशंस, यू कैन गिव अल्टरनेटिव सोल्यूशंस और इफ़ यू कैन प्रोवाइड द अल्टरनेटिव्स इफ़ the information is available. If you have asked reader to decide between alternatives or to take some action, so make sure that they know what to do and when to do and how to do it. Whatever type of
conclusion you use, follow these guidelines. यानी कि आपने अगर अपने रीडर को ये कहना है कि उसके पास कोई अल्टरनेटिव्स हैं, अगर अपने रीडर्स को जो है वो कोई अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, या फिर जो है आप उसको बता रहे हैं कि इफ़ योर रीडर इफ़ यू और you are telling them to take some actions, so make sure you are also telling them, the reader knows this thing, that what to do and when to do and how to do it. Whatever type of conclusion you are writing, you can follow these guidelines. Number 1, avoid an uncertain conclusion, manage future correspondence, express optimism if appropriate, and the fourth thing is that be sincere. So keep in mind that close can have a lasting impact on your audience. और क्योंकि क्लोजिंग पे आपने इसलिए फोकस करना है क्योंकि क्लोजिंग जो है, एंड यू नीड टू राइट अ रिस्पेक्टफुल क्लोजिंग, क्योंकि यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट क्लोजिंग जो है, दिस इज़ द लास्ट इम्प्रेशन फॉर योर ऑडियंस, एंड यू कैन हैव अ lasting impact or lasting impression on your audience even though they are disappointed. Leave them with a good impression and leave them with the impression that they were treated with respect. So this is the strategy of delivering a negative news through indirect approach or indirect method.